The annexation and consolidation of Bengal by the East India Company was one of the significant events in the modern Indian history. This event laid the foundations to the British Empire in India. Hi, I am Ajay Khatri and I welcome you all to Yuktira IAS. Today in this lecture, we are going to discuss the Bengal chapter. And this is from the prelims perspective. Now, before we jump into this, we all know that to get into the prelims examination to clear it, modern Indian history is one of a very significant subject, right? Now उस modern Indian history को complete करने के लिए we are required to do number of things. Like the one thing that is most talked about is doing the spectrum, right? Other than that, we have to do some old ncrts, we have to do some new ncrts. So there are lots and lots of things, including we have to do the Bipin Chandra, right? So there are number of things. But if you are following this particular playlist about modern Indian history, I can guarantee you one thing, that everything sooner or later will be covered in this single list. Now before we start with our topic, we need to discuss कि how we are going to study this particular subject. One thing is to do the modern Indian history, we are going to cover number of sources. Those sources will be divided into number of topics that we need to do, and then those topics are divided into subtopics, or you can at this moment you can say them as flashcards, right? And don't worry, we are going to cover the previous year questions as well, not just from the civil service examination, but all the NDA, CDS, CAPF and every other thing, right? So one thing's for sure, that we are going to cover it so comprehensively. But when I say the word comprehensively and complete now, so you must be thinking कि इतना ज़्यादा पढ़ना होगा, we have to study so much and everything. That is not the case. If you study it in a scientific and systematic manner, it will be very very in less amount, and you will be able to do it in a very short amount of time, but doing it comprehensively so that we get our answers correct in the examination. This is the agenda that we have to follow. Right. Now, let us talk about some things that we need to do. The first thing that we are talking about, this is the title. Now, this format that you are looking at this screen, that here it is some topic which is given, here something is written, here you will see something else. So let me just quickly take 1 minute to explain you what this is all about, right? So I'll tell you what it is. One thing, here we are following a method known as the flashcards, right? This method is so scientifically designed and curated that it will help you learn everything while you are watching it. I'll explain you how. This card over here, which you can see, this is known as the front face of the flashcard, right? And whatever you see in this particular block, that will be the बैक साइड. नाउ जो फ्रंट साइड पे जो चीज होगी ना, दैट इज नोन एज द स्टिमुलस. कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम दिया गया, ठीक है, तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, उसको पता होना चाहिए कि यार वेदर आई हैव सीन दिस टॉपिक और नॉट, वेदर आई हैव डन दिस टॉपिक. बिकॉज जब हम उसको है ना कंप्लीट ऐसे टेक्स्ट में पढ़ते हैं, पैराग्राफ्स वगैरह में पढ़ते हैं, वी समटाइम्स गेट अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड एंड एवरीथिंग. बट इनको सेग्रीगेट करने का, अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड करने का मीनिंग ही यही है, सो दैट आपके माइंड में भी ऐसे पर्टिकुलर ब्लॉक्स बने एंड यू आर एबल टू रिमेंबर देम परफेक्टली, राइट? दिस इज आवर एम. ये वाला जो कार्ड है ना, दिस इज नोन एज द रिकॉल कार्ड. कि जब आपको ये चीज बोली जाएगी, ऑफ कोर्स दिस इज द डिफरेंट स्लाइड, आई विल शो यू दिस वन. लाइक दिस इज द स्टिमुलस एज आई टॉक्ड अबाउट, ठीक है, ये स्टिमुलस हो गया. यहां जो भी लिखा आएगा दैट विल बी नोन एज द रिकॉल, ठीक है. तो एग्जाम में ये चीज आपको जहां भी दिखाई देगी, योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली come up with these points which will be written in the recall section. This is the power of the flashcards, and this is how we are going to cover the complete modern Indian history. I am saying it again, the complete modern Indian history in this particular playlist using this particular technique, which of course you'll enjoy because it is not a passive learning technique. Remember this,
It is completely 100% active learning technique, right? So you have to be with me throughout the video. ठीक है, अभी ये maybe it could be long because we are discussing all ki how it is done and you are understanding the system. Then you'll connect with me, and then continuously we'll be doing number of short videos, and every day you'll remember some of the flashcards perfectly and your memory will increase. One thing other than this that I want to tell you, what is that? किसी हमारे पास 100% की मान लीजिए नॉलेज है जो हमको टेक्स्ट में दे रखी है या हमारे नोट्स में दे रखी है. नाउ व्हेन वी आर डूइंग इट, वी आर नॉट टू रिमेंबर द कंप्लीट 100% नॉलेज दैट यू आर ऑल वेल अवेयर ऑफ. ठीक है, अगर एग्जाम में इस लेवल तक अभी आ चुके हो तो 100% में से इवन इफ वी आर विच आई एम गिविंग अ वेरी बिग 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 परसेंटेज 90%, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर द थिंग्स, इफ यू आर एबल टू डू 90% ऑफ अ टेक्स्ट, देन यू आर इन द विन सेक्शन, यू आर द पर्सन हु इज विनिंग. ठीक है, अब उस 10% के ऊपर रोने मत लग जाना कि ओके आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, आई एम नॉट अवेयर. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दोज 10%. एवरी वन इज गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट कि वेदर यू नो द 90% और नॉट, एंड वेदर यू कैन compete with the other aspirants or not. ठीक है, this particular section over here, this is the image section. Maybe you'll look at this particular image that you can see over here. ठीक है, इस इमेज से इस पर्टिकुलर नॉलेज को अपने माइंड के अंदर एंकर करने की कोशिश करना. ठीक है, एंकर करने की व्हाई आई एम सेइंग कि आवर माइंड सीज थिंग्स इन विजुअल्स एंड एवरीथिंग. So you have to connect this particular topic which is given over here. You have to think with me. You have to think in your mind when I'm talking about this particular topic. अगर ये points याद हैं तो इनको याद रिमेंबर करने की कोशिश करनी है और इस इमेज के साथ उन सब चीज़ों को कनेक्ट करना तुम्हें आना चाहिए. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट. और जैसे जैसे हम और वीडियोस करेंगे इस पर्टिकुलर चीज में, ठीक है, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ऑफ कोर्स वी विल बी डूइंग अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. वी आर गोइंग टू डू ऑल द 5 कोर सब्जेक्ट्स. ठीक है, एंड इन दोज 5 कोर सब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम रूटीन, राइट? ओके, चलो, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस क्विकली जंप इनटू आवर टॉपिक एंड देखते हैं कि तुम्हें ये मेथड कितना इफेक्टिव लगता है. लास्ट में when we are done with the particular topic, so what you are going to see, you are going to see an active recall exercise. और वहां पर तुम्हें एक्टिवली रिकॉल करना पड़ेगा कि ये मैंने टॉपिक पढ़ा था, इसमें ये पॉइंट्स है, इसमें ये पॉइंट्स है, इसमें ये पॉइंट्स है, एंड दैट इज हाउ यू विन. ओके, सो शुड वी स्टार्ट? परफेक्ट. दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक, राइट? एज वी टॉक्ड अबाउट द बंगाल चैप्टर. तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर आती है, राइट? इंडिया के अंदर आती है एंड बंगाल में वो एनेक्स करती है, कंसोलिडेट करती है चैप्टर उस चीज के बारे में. एंड दीज आर ऑल दी फ्लैश कार्ड्स दैट वी आर गोइंग टू लुक एट. ठीक है, इट मीन्स अगर आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ओनली दिस मच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू remember everything. And I'm not talking just from the prelims perspective. No, 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 no. प्रिलिम्स तो आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज मेंस में आपको फैक्ट्स, डेटा, नंबर्स, ईयर्स, नेम्स, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है टू राइट वेरी गुड आंसर्स, राइट? एंड फॉर दैट you will remember these flashcards and you will actively recall all the things so that you can recall them in your exam hall and then you can start. ठीक है, चलो, ओके ओके, प्रॉमिस, डन. नाउ वी कैन जस्ट गो अहेड विद द फर्स्ट थिंग. तो मैं आपसे कुछ ना बेसिक ऐसे डिस्कशन करेंगे व्हेन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. हम कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे जो आपके इस फ्लैश कार्ड के लिए एक फाउंडेशन सेट करेगा. तो देखते हैं, उसको करके देखते हैं. You can consider it as one of the lectures where you try to learn how the teacher is teaching us. Okay, of course you'll like it. Okay, first thing that we are going to talk about is the causes. And causes किस चीज़ के? The British success in India, right? अब जो ब्रिटिशर्स थे, they were one of the European powers, right? वो बाकी यूरोपियन पावर्स की तरह थे. There were French, और कौन थे? There were Dutch people as well.
there were Portuguese, they were Danish, and there were number of European powers which were there. But in sub European powers में से which was that one power which won everything? It was of course the Britishers. ठीक है. अब ब्रिटिशर्स ने अपनी, अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, विल गो अ लिटिल बिट बैक इन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड वी बेसिकली नो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कंपनी बनती है, ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ दिस कंपनी कब फॉर्म हुई थी ये? कैन यू थिंक अबाउट इट? नाउ डिड यू सी हाउ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन एंड मेकिंग योर माइंड थिंक, एंड आई एम नॉट जस्ट डायरेक्टली प्रोवाइडिंग यू द इंफॉर्मेशन. ठीक है. इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर, तो आपका माइंड क्लिक करेगा यार, व्हाट इज द डेट, हाउ आई एम टू लर्न इट एंड एवरीथिंग. दिस ईस्ट इंडिया कंपनी was formed on 31st December 1600, right? For those of you who remember this particular date, well and good. See, I'm telling you again, this first lecture is going to take a little bit more time, but rest of the chapters are to be done in 25 minutes or something, ठीक है, including the revision and everything. तो ईस्ट इंडिया कंपनी 31st दिसंबर 1600 को बनती है. ठीक है. उसके बाद दे कम टू इंडिया. ठीक है. दे स्टार्ट टू डू द ऑल द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. ठीक है. वो ट्रेड करना शुरू करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट टू एस्टेब्लिश देमसेल्स. उस ट्रेड करने के लिए दे विल रिक्वायर सम फैक्ट्रीज. ठीक है. तो धीरे धीरे फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना शुरू करते हैं. अब इस फैक्ट्री वर्ड को you don't have to think that they are manufacturing something. It is not that factory. It is not manufacturing something. It is to be considered a kind of a warehouse. ओके. तो पोर्ट्स वाला जो एरिया होता था इंडिया में जो पोर्ट्स वाला जो एरियाज था, उन पर्टिकुलर पोर्ट्स वाले एरियाज पे ये ऐसी ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करा. राइट. ऐसे करके उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, एंड नाउ दे स्टार्टेड डेवलपिंग दोज फैक्ट्रीज, एंड दे स्टार्टेड टू मूव इनवर्ड्स एज वेल. एंड धीरे धीरे वो अलग अलग एरियाज में, सपोज दे आर बिल्डिंग देयर फैक्ट्रीज इन Masulipatanam. Okay. They are building their factories in the areas of Surat. Fine. एंड 1600 में बनी है. अब धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, एंड ड्यूरिंग द 1630s वाला जो पीरियड आएगा, दे स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स विच पर्टिकुलर एरिया? दे मूव टूवर्ड्स द एरिया ऑफ बंगाल. ठीक है. मैं रुक के उन वर्ड्स को बोल रहा हूँ सो दैट यू रिमेंबर देम फर्स्ट एंड देन यू हियर इट आउट कमिंग फ्रॉम मी. ठीक है. वो किस एरिया में चले जाते हैं? बंगाल के एरिया में. धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो वो अनफोर्टिफाइड सेटलमेंट्स बनाते हैं. कैसी सेटलमेंट्स? अनफोर्टिफाइड. आई एम ट्राइंग टू बिल्ड योर बेसिक्स. ठीक है. तो बियर विद मी प्लीज. अनफोर्टिफाइड सेटलमेंट्स बनाते हैं. अनफोर्टिफाइड सेटलमेंट्स का मतलब क्या है कि ठीक है, नॉर्मल एरियाज बना दिए, वहाँ पर कोई फोर्ट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, गन्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो देर आर सिंपल अनफोर्टिफाइड सेटलमेंट्स. धीरे धीरे इन सेटलमेंट्स को वो और बेटर करना शुरू करते हैं. जैसे अगर मैं सिर्फ बंगाल की बात करूं, तो आफ्टर सम टाइम इन द 1690 का जो पीरियड है, दे मेड अ पर्टिकुलर एरिया विच वॉज द एरिया ऑफ कैलकटा. तो वो किसको बिल्डअप करते हैं? कैलकटा को बिल्डअप करते हैं. ठीक है. तो कैन यू सी द जर्नी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? इट वॉज फॉर्म्ड एज अ ट्रेडिंग कंपनी, एंड इट वॉज ग्रांटेड द रॉयल चार्टर. अब ये रॉयल चार्टर उनको किसने दिया? इट वॉज गिवन by Queen Elizabeth first. Okay, it was given by Queen Elizabeth first on this particular date. अब उनको चार्टर मिल जाता है, वो इंडिया में आते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर लेते हैं. मछलीपट्टनम, सूरत जैसी जगहों पर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं. देन दे स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द एरियाज ऑफ बंगाल. वहाँ पर वो स्टार्टिंग में अनफोर्टिफाइड सेटलमेंट्स बनाते हैं. ठीक है. दे हैव चोजन द एरिया अराउंड द रिवर Hooghly. Hooghly is a distributary of which river? Hooghly is a distributary of which river? It is the distributary of Ganga. It is the westernmost distributary of Ganga in the state of West Bengal. Right? अब वो इस हुगली नदी के बैंक्स पे अपनी सेटलमेंट सब बना रहे हैं. दे आर बिल्डिंग द सिटी ऑफ कैलकटा ओवर देयर इन 1690s. आगे हम इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे. ठीक है. एंड धीरे धीरे वो इस एरिया को एनेक्स करते हैं. कैलकटा
बंगाल के एरिया को अनेक्स करते हैं, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस क्रिएट करते हैं, सिंध, पंजाब। तो दे आर क्रिएटिंग देयर एम्पायर। तो इफ आई आस्क यू, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इफ आई आस्क यू वन सिंगल थिंग, कि व्हाट वर द causes, कि why did the British win and not the French? So there are number of things that are coming to your mind, ठीक है। एक क्या आती है सबसे पहले, तो मिलिट्री के डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से बात करो। देर आर सम आर्म्स, ठीक है, दे वर गुड विद आर्म्स, दे हैड बेटर आर्म्स एंड एमिनिशंस, ठीक है, दे हैड बेटर। कौन चला रहा है उन आर्म्स एंड एमिनिशंस को? पीपल आर डूइंग दैट, तो सोल्जर्स। तो सोल्जर्स आर हाईली trained, we can say that. Yes, soldiers are highly trained. Who are commanding these soldiers? तो various leaders are commanding. Now what is the strategy to be used? ठीक है, वो एक टाइप के लीडर्स होंगे। उन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, दीज आर द सेकेंड लाइन लीडर्स। विच आर दे? तो ब्रिटिशर्स के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बेटर थे, उनके पीपल ट्रेंड थे हाईली, देर वर बेटर कमांडर्स हु वर देयर, द लीडर्स वर देयर, द सेकेंड लाइन लीडर्स वर देयर। On the top of it, they had a great financial backup. They had a great financial backup, right? And this financial backup, why it was coming? लंदन ऑलरेडी क्रिएटेड द फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उनके पास वो सेंट्रल बैंक है। अब वो सेंट्रल बैंक के पास पैसा कैसे? अब उन्होंने ना डेट इंस्ट्रूमेंट का यूज करना शुरू करा। व्हाट इज दिस डेट इंस्ट्रूमेंट? इफ आई आस्क यू, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। यस, व्हाट इज दिस डेट इंस्ट्रूमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट? कि जो सेंट्रल बैंक होता था, जो लंदन सेंट्रल बैंक था, वो गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को वो सेल आउट होती थी, एंड वहां से उसके सेल होने के बाद, ठीक है, लोग उनको लेते थे और पैसा उनके पास जमा होता था, बिकॉज इट वॉज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस इज वॉट टूडे मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर डूइंग, ठीक है, दे आर सेलिंग द सिक्योरिटीज एंड एवरीथिंग। तो सेंट्रल बैंक क्रिएट होने की वजह से उनके पास एक बेटर फाइनेंशियल बैकअप था, कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा अनेक्सेशन, वोट्स में पैसा लगता है, बाकी सारी चीज़ें। Other than that, did they have a nationalist feeling? Did they have a nationalist, like today we are having the nationalist feeling that okay, we are Indians and we have to take India forward and everything? They did have a, what we can say, a nationalist pride, ठीक है, that we are the superior race. This is the British Empire. Indians are inferior. The prince, the sultan, everyone is inferior to us, and we have to build. So they were having the nationalist pride as well. We are better than the French people. We are better than the Dutch people. So this is what they were thinking. See, this first slide, I took a lot of time. Agreed? Okay. Now the point is, I was teaching you how we are going to do this. We are not going to take the same amount of time in the coming slides. ओके, तो हमने कॉजेज को देखने के लिए आई आस्क्ड यू सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू वर थिंकिंग अलोंग साइड विद मी. आई एम नॉट डिक्टेटिंग यू, ओके, आई एम अलाउिंग यू टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है, ऑल थ्रू दिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स. तो कॉजेज हमने देख लिए, इमेज हमने इस चीज़ की देख ली, इमेज को साथ साथ देखते रहना, विच इज़ गिवन ओवर हेयर, ठीक है। ये हमारा कौन सा कार्ड था? स्टिमुलस कार्ड. अब मैं तुम्हें बोलूंगा, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं? कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं एक सेकंड के लिए, मैंने इसको रब कर दिया. कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, आ रहा है कुछ दिमाग में? ये है आर्म्स है, एमिनेशन है, ट्रेंड है, डिसिप्लिन है, मिलिट्री है, स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल बैकअप है, राइट, नेशनलिस्ट प्राइड है, लीडर्स है, कमांडर्स है, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग. हो गया मीन्स का आंसर रेडी. यू हैव द पर्टिकुलर पॉइंट्स इन. अब ये तो आसान था, ये कॉजेज. अब तुम कहोगे सर ये तो आसान है. भाई मुश्किल चीज भी ऐसे ही याद करनी है. दिस इज हाउ वी हैव टू डू. ओके, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है. सपोज ये हमारे सामने एक कार्ड है ना, अब हम इसको फ्लिप करते हैं. फ्लिप करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? दिस इज द रिकॉल. दिस इज नोन एज द रिकॉल. तो पहले वाले कार्ड को देखकर दिमाग में आने चाहिए कुछ पॉइंट्स. दोज पॉइंट्स आर टू बी
spoken in front of, you can, test your friends and everyone. You can do it on your own self as well. अब इन पॉइंट्स पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम. इमेज सेम रहने वाली है बिकॉज द एंकर हैज़ टू बी सेम. The superior arms, military and strategy, that was the first cause. The better military discipline, and there were regular salaries given to the British officers. The civil population discipline was great. There was a fair selection system which was used to recruit in the army. There was brilliant leadership and the second line leaders जो implement करते हैं decisions को. There was strong financial backup and nationalist pride. So next time, if someone asks you the causes of British success in India, you will come up with these points. Definitely, you will come up with these points. And this is how easy it can be. ठीक है. अब हम चलते हैं क्विकली. नाउ यू हैव गॉट कि ओके हाउ इज सर इज गोइंग टू टीच अस. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू थिंक. So it is kind of a, we are doing we will be doing the complete chapter as well. We will be doing, okay, so what we are doing, we are doing the complete जो टॉपिक है हमारा हम वो भी कर रहे हैं. वी आर रिवाइजिंग एट द सेम टाइम यूजिंग फ्लैश कार्ड्स एंड यू आर एक्टिवली रिकॉलिंग. ठीक है, इफ यू हैव स्टडीड दिस बिफोर हैंड. ठीक है, अगर स्टडी नहीं भी करा सो इट इज गुड फॉर एवरीवन. इफ यू आर अ बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, everyone can watch these lectures and remember the complete modern Indian history. I am guaranteeing you that everything that is given in Spectrum, Bipin Chandra, old NCRTs, the new NCRTs, everything you will find in this complete playlist, that in all these videos, and you don't have to open up anything other than these. एक चीज की वो है इन कार्ड्स को याद रखना. चलें अब आगे. अब चलते हैं फटाफट इसमें आगे मूव करेंगे एंड वी विल सी एवरीथिंग दैट इज देयर. नाउ वी आर गोइंग टू सी बंगाल टू यूरोप एक्सपोर्ट्स. द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, राइट. नाउ उस बंगाल के रीजन से यूरोप में कुछ चीजें क्या होती थी, एक्सपोर्ट होती थी. नाउ व्हाट आर दोज एक्सपोर्ट्स, व्हाट आर दोज एक्सपोर्ट्स, कि ऐसा क्या क्या एक्सपोर्ट होता था. वन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई विल शेयर विद यू कि मान लो जो एशिया का जो रीजन है, ठीक है, जो एशिया का पूरा रीजन है और यहाँ पर है यूरोप का रीजन. नाउ इस एशिया के रीजन से देर वॉज ट्रेड विच वॉज गोइंग ऑन, देर वर थिंग्स विच वर बीइंग एक्सपोर्टेड. इस पूरे एशिया से जितना भी ट्रेड था, वट एवर ट्रेड वॉज गोइंग टू यूरोप, उसका 60%, ओके, आई विल राइट इट ओवर हेयर, उसका 60% वॉज कमिंग फ्रॉम वन सिंगल एरिया, दैट वॉज फ्रॉम बंगाल. ये बात क्लियर है. नाउ व्हाट वर द आइटम्स ऑफ ट्रेड. प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट वर द आइटम्स ऑफ ट्रेड, इन विच एरियाज वर. सो वी हैव टू नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स. कुछ तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है. वी टॉक अबाउट खाने पीने की चीजें. सोचो राइस है, ओके, शुगर है, ठीक है. इंडिया वॉज फेमस फॉर द टेक्सटाइल्स, ओके, तो देयर वर टेक्सटाइल्स एज वेल. Fine, we were sending them other things as well. There was rice and sugar तो हमने देख ली, textiles हमने देख लिया. Other than that we were sending them saltpeter. इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर क्या चीज़ है. फाइन, तो वी वर सेंडिंग देम नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, एंड दीज आइटम्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूरोप. सॉल्टपेटर के बारे में एक बार देखते हैं कि ये है क्या चीज़. Now saltpeter is basically used in what we can say, we use it in explosives. ठीक है, it is used in some kind of fertilizers as well. Fertilizers याद करते चलना, be kind of an active learner with me. ओके, तो saltpeter जो चीज़ है वो explosive fertilizers में यूज होती है. and the most common which is there, it is the potassium nitrate. ठीक है, KNO3 for those of you from science background. Okay, so potassium nitrate is one of the common things in the saltpeter. It is basically used in explosives, fertilizers. और explosives में बात करूँ particularly it is used in gunpowder. Okay, so these were some of the things. Exports पे अब हमने कुछ बात करी,
कुछ माइंड में सेटअप हुआ, पॉइंट्स देखेंगे और पॉइंट्स को तुम याद रखोगे, ठीक है। थिंग्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम बंगाल, फाइन। तो सोल्ट पीटर, राइस, इंडिको विच वॉज बीइंग सेंट टू यूरोप, ठीक है, जो नील होता था, ठीक है, इट वॉज यूज इन क्लोथ्स एंड डाइंग एवरीथिंग। पेपर, स्पाइसेस का यू नो, ठीक है। शुगर, सिल्क, cotton textiles and handicrafts. India was famous for handicrafts and not that much for manufacturing goods. So these are all the items which were sent from Bengal to Europe. These were the things which were exported, and 60% of the British imports from Asia were coming from Bengal. दोनों पॉइंट्स याद हो गए। तो नेक्स्ट टाइम if there is something, some information that is required for you to remember what was coming from Bengal to Europe, these are the 2 points that you are to come up with. Okay, next point पे चलते हैं। तो हर एक का है ना थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे, we will see the background and will then move into the details of it. The British factories in Bengal, ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1630। इस टाइमलाइन के बारे में हमने बात की कि इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड, and during the first quarter, I'm talking about the first quarter, it set up its factories in Masulipatam, Surat, and gradually it moved towards Bengal. फिर जब वो बंगाल में आते हैं, when they are coming in Bengal, they have established some kind of factories. And what were these factories? What were these factories? These factories were warehouses. And Bengal में किस important river के आसपास इन्होंने ये फैक्ट्री सेटअप करी? Yes, it was the river Hooghly. Hooghly is the distributary of which particular river? Ganga. It is the westernmost distributary of Ganga in West Bengal. तो फैक्ट्रीज कौन कौन सी थी, ठीक है। अब उन पर्टिकुलर एरियाज के नाम देखेंगे जहां पर इन 1630, ठीक है, ब्रिटिश ने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी। इट वॉज इन बालासोर, इट वॉज इन बालासोर। हुगली रिवर के नाम से याद रह जाएगा। कासिम बाजार बहुत ज़्यादा फेमस था, कासिम बाजार, ठीक है। तो इसको उनके रूलर से भी याद रखने की कोशिश करना, एक नवाब थे उनके मीर कासिम, तो कासिम बाजार। पटना एंड डेक्का। अब यहाँ पर तुमने एक चीज़ देखी कि हमने इसमें ना पटना वर्ड को इन्वॉल्व कर लिया। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि वो क्या है। जब भी हम बंगाल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, वेन एवर वी आर यूजिंग द वर्ड बंगाल, वट इट बेसिकली मीन्स, ये रीजन जो है बंगाल वाला, ये किस टाइप के रीजन की हम बात कर रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू गो विद दिस, ओके, ऐसे करके, ठीक है। एंड वी आर इंक्लूडिंग द अदर एरियाज एज वेल। नाउ इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज this area was the, I've given you a rough map of what was Bengal. So Bengal basically contained number of regions। कौन कौन से? एक तो जो अभी करंटली बंगाल वाला है, जिसके अंदर वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश है वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा, और वेस्ट बंगाल जो इंडियन स्टेट है वो भी। इट इंक्लूडेड द एरियाज ऑफ बिहार, इट इंक्लूडेड द एरियाज ऑफ ओडिशा, और यू कैन करंटली से इट एज ओडिशा, ठीक है। तो ये जब भी हम बंगाल वर्ड का यूज करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रीजन ऑफ बंगाल, वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ बिहार, वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ ओडिशा, ठीक है। अब बंगाल यहां पर हो गया, असम यहां पर हो गया, अवध वो इस एरिया में हो जाएगा। दिस वॉज द एरिया ऑफ बॉम्बे, यहां पर इस एरिया में दिस वॉज मद्रास। सो दीज वर द मेजर एरियाज दैट इट वॉज लुकिंग एट, ठीक है। फैक्ट्रीज हमने देखी थी कौन से एरिया में? 1630s में। 1630s में फैक्ट्री कौन कौन सी थी? बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना एंड डेक्का। सो दीज वर द मेजर फैक्ट्रीज विच वर देयर इन 1630। साथ साथ याद हो रहा है? परफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। द फाउंडेशन, यू हैव टू चेंज इट, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कैलकाटा, की जो मॉडर्न कैलकाटा हमने देखा उसकी फाउंडेशन के क्या पॉइंट्स हैं, तो हमारे दिमाग में क्या क्या आएंगे? सी अगेन वी विल कम टू आवर टाइमलाइन, तो चीजें रिवाइज हो जाएंगी। 1600 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, वेल एंड गुड। 1630 के टाइम पीरियड में द ईस्ट इंडिया कंपनी वेंट टू बंगाल, और वहां पर उन्होंने कुछ एरियाज में अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करा, ठीक है। और 5 ऐसे एरियाज थे जहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करा, ठीक है। वो 5 एरियाज कौन से थे? नंबर 1
It was number 2, number 3, number 4 and number 5. कर लो इनकी फुल फॉर्म्स। ठीक है, बालासोर, कासिम बाजार, हुगली, पटना एंड डेक्का। ठीक है, 1630 में हो गया। फिर उन्होंने क्या करा, अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, ठीक है, उन्होंने 3 विलेजेस को, ठीक है, 3 विलेजेस को कंबाइन करा, और उन 3 विलेजेस को कंबाइन करके दे वर नोन एज आफ्टर दैट एज कैलकाटा। तो उन 3 विलेजेस के जो रीजन थे, एरियाज थे, उनको कंबाइन करा। दे वर अलोंग प्रेजेंट अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली, और फिर उन्होंने उसको क्या नाम दिया, इट दे वर नेम्ड एज कैलकाटा। नाउ व्हाट वर दीज 3 विलेजेस? नंबर 1 वाज सुल्तानुती, ठीक है, ऑफ कोर्स यू रिमेंबर इट। सेकंड कौन सा है? इट नेम स्टार्ट्स विद के। थर्ड, थर्ड सेकंड का बताते हैं, एंड थर्ड जी गोविंदपुर। ठीक है, सो इट इज सुल्तानुती, कालिकत एंड गोविंदपुर। तो जो नाम अगर तुम सोचोगे कि कैलकटा, तो वो बेसिकली इस नाम से निकल कर आ सकता है। एंड बिकॉज इंडिया वॉज सो फेमस फॉर इस टेक्सटाइल्स, यान के लिए, थ्रेड्स के लिए, कपड़े के लिए ज्यादा फेमस था। तो कैन यू सी दिस पर्टिकुलर नेम ओवर हेयर, सुल्तानुती, सुल्तानुती। व्हाट डू यू मीन बाय सुता? इट मीन्स यान और थ्रेड। ठीक है, इट मीन्स यान और थ्रेड। तो तुम सोच सकते हो ना कि विलेज किस चीज के लिए फेमस होगा। एंड नुति इज बेसिकली बंडल, तो इट वॉज द बंडल ऑफ थ्रेड्स। तो दिस विलेज वॉज फेमस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड इन सबको मिलाकर वट, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? इट बिकेम द मॉडर्न कैलकाटा। ये किसका जॉब था? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। आई एम ट्राइंग टू यूज सबकॉन्शियस निमोनिक्स एंड स्ट्रेटेजीज विद यू। फाइन इफ यू कैन फाइंड दम। कैलकाटा को सेटअप करने का जॉब किसका था? इट वॉज द जॉब ऑफ जॉब चार्नोक। ठीक है, पर्सन का नाम क्या था? पर्सन का नाम ही जॉब चार्नोक है। वी आर गोइंग टू क्विकली लुक एट दी रिकॉल पॉइंट्स। जॉब चार्नोक ये एक इंग्लिश मर्चेंट थे, ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने पहले एक ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप करी इन द विलेज ऑफ सुतानुती। सुतानुती मीन्स यान बंडल। इट वॉज ऑन अगस्त 24, 1690। तो 1690 का पीरियड तुम्हें याद रखना है। वट वर द 3 विलेजेस? सुतानुती, कैलिकट एंड गोविंदपुर। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट्स रिगार्डिंग फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कैलकाटा। आगे चलते हैं। अब देखो धीरे धीरे ना स्टोरी अपने आप फॉर्म हो जाएगी। एक चीज तुम्हें आई थिंक आई हैव टोल्ड यू, आई यू नो आई अगेन टेल यू, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, एग्जाम में स्टोरीज नहीं पूछेगा। ठीक है, और जितनी स्टोरीज पूछेगा ना उससे ज्यादा तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। हमारा जो सारा का सारा फोकस होना चाहिए ना, वो होना चाहिए इन पॉइंट्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स दैट आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन द क्वेश्चन पेपर एज ऑप्शंस। ठीक है, तो स्टोरी को तो थोड़ा बहुत सुन लिया तुमने कि जो मैं तुम्हें तो बता रहा हूं कि ठीक है ये है। फोकस कहां पर होना चाहिए? फोकस शुड बी ऑन फैक्ट्स, फोकस शुड बी ऑन स्टेटमेंट्स कि हाउ वी हैव टू लर्न दोज टॉपिक्स। ठीक है, बड़ा इजी होने वाला है। नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे, हमने बंगाल के रीजन को देख लिया ना कि बंगाल का रीजन क्या था। इट कंटेन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा परफेक्टली। बंगाल के रीजन में जो रूल कर, वैसे तो मेजर टेरिटरी पे कौन रूल कर रहा था? इट वॉज द मुगल एम्परर वॉज रूलिंग द एरिया। बंगाल के एरिया में थे नवाब्स। कौन रूल करते थे? नवाब्स। नाउ दीज नवाब्स और बेसिकली अंडर द मुगल टेरिटरी। वो उसको अपना एनुअल जो भी उनको देना होता था, ट्रिब्यूट देना होता था, वो देते रहते थे। नवाब्स के बारे में। अब बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के ये नवाब्स कौन थे? ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम वेरी स्पेसिफिक नंबर ऑफ नवाब्स सो दैट वी कैन बिल्ड अप आवर स्टोरी। ठीक है, हम शुरू करेंगे पीरियड ऑफ 1700 से, क्योंकि 1690 में वो बन रहा है, कलकत्ता बन गया, 1700 पीरियड पे आ जाओ। ठीक है, 1700 पीरियड से हम शुरू करेंगे। इट वॉज, फर्स्ट वॉज मुर्शिद कुली खान। ठीक है, सबसे पहले तो यही याद रखोगे, 1700 मुर्शिद कुली खान। ओके, उसके बाद आई गिव यू जस्ट, उसके बाद देर इज सुजाउद्दीन। कौन है उसके बाद? सुजाउद्दीन।
ठीक है, दैट वाज द सेकंड वन। सुजाउद्दीन के बाद आता है सरफराज खान। सरफराज खान। एंड सरफराज खान के बाद आता है सर उनका कमांडर उनकी आर्मी का, ही इज अली वर्दी खान। इतनी ही स्टोरी काफी है तुम्हें ये समझने के लिए कि एक बंगाल का रीजन है, उस बंगाल के रीजन में मुगल अथॉरिटी के अंदर एक नवाब है, ही इज मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद आता है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद आता है सरफराज खान एंड उसके बाद आता है अलीवर्दी खान। ठीक है, तो ये हमको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो दिस मासा वी हैव टू रिमेंबर, मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान एंड अलीवर्दी खान। और ये पीरियड जिसके बारे में हमने अभी बात करी, दिस पीरियड इज फ्रॉम 1700 टू 1756। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, एक बार दोबारा इन नाम को अपने ब्रेन में एक बार रीथिंक कर लो। ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। 1700 से 27 तक मुर्शिद कुली खान, आफ्टर हिम 27 to 39 Sujauddin, 39 to 40 Sarfraz Khan. He was killed by Ali Vardi Khan, who came next, and they were during the period of Mughal Emperor. This is Mughal Emperor Muhammad Shah. This Muhammad Shah was also known as Muhammad Shah Rangila. If you have read about the medieval India, नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है अगर नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, मोहम्मद शाह वॉज मोहम्मद शाह रंगीला से तुम उसको यू कैन रिमेंबर 1719 to 1748। आई थिंक दिस वॉज द पीरियड फॉर हिम, डजेंट मैटर। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे ये नवाब थे। हमारा टॉपिक क्या है? द बंगाल चैप्टर, राइट। अब उस बंगाल चैप्टर हमें याद होना चाहिए। एंड आई एम नॉट गिविंग यू एनी स्टोरीज और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मेरी ये रहेगी दैट आई एम रिपीटिंग इट नंबर ऑफ टाइम्स सो दैट दीज थिंग्स स्टे इन योर माइंड एंड यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। देखा, रिवाइज हुआ, दिमाग में सेट हुआ, ठीक है, एग्जाम रेडी बन जाओ। ठीक है, ओके, सो दीज वर द पीपल, मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान एंड अलीवर्दी खान। नाउ सी द ईयर 1756, बिकॉज 1757 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। ठीक है, एंड कीप लुकिंग एट कि भाई नवाब्स हैं, बाकी सब हैं, यू कैन कीप लुकिंग एट द इमेजेस सो दैट यू कैन कीप इन माइंड। ठीक है, ये वाली चीज हमने देख ली, मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, ही वॉज टिल 1756। उसके बाद गेम शुरू होता है, ही इज सिराजुद्दौला। ठीक है, ही इज सिराजुद्दौला। तो दिस इज द स्टिमुलस। सिराजुद्दौला बोल दिया तो क्या दिमाग में पॉइंट्स आएंगे? डायरेक्टली पॉइंट्स पे टच करेंगे एंड वी विल सी सम थिंग्स अबाउट सिराजुद्दौला, जो किसके बाद आया? ऑफ कोर्स अलीवर्दी खान के बाद आया। नाउ सिराजुद्दौला के बारे में सबसे पहली जो चीज हम समझेंगे ना, दैट ही वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ, he was the last independent Nawab of Bengal. ठीक है, independent why we are saying, because after that there was influence of the British East India Company with the Nawabs. तो ये इंडिपेंडेंट, लास्ट इंडिपेंडेंट था। 1756 के पीरियड तक तो अलीवर्दी खान था, उसके मिड में ही वो आ गए, एंड ही वॉज देयर टिल जून 1757। ही वॉज देयर टिल जून 1757। नाउ इस डेट को देख लो एक बार, we can use the other as well, 23rd June 1757, because this is the date of the battle. कौन सा बैटल? It was the battle of Plassey. कौन सा बैटल जब मैं पूछ रहा हूँ मैंने उसकी विच बैटल, तो यू शुड कम अप विद बैटल ऑफ प्लासी नेक्स्ट टाइम इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। एक बार इस डेट को पहले तुम याद कर लो, 23rd जून 1757। ठीक है, इस बैटल के 100 ईयर्स के बाद, इस बैटल के 100 ईयर्स के बाद 1857 में इंडिया के अंदर रिवोल्ट होगा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी, तो प्लीज रिमेंबर इट। तो ही सिराजुद्दौला, ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, ये पर्टिकुलर डेट तक। नाउ सिराजुद्दौला जब नवाब बने तो उन्होंने बेसिकली क्या करा, द थिंग्स दैट ही डिड वोर, कि उनके ना एक मीर जाफर, एक उनके कमांडर थे, आर्मी के जो कमांडर्स थे, ठीक है,
उनके पास ना मल्टीपल पोजीशन थी, दैट ही वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी एज वेल, ही वाज द बख्शी एज वेल। ठीक है, बख्शी होता है, बख्शी इज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी। ठीक है, बख्शी इज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी। बख्शी, बख्शीश दो भाई हमें, बख्शीश दो। तो पे, पे से उस चीज को याद रखना कि बख्शी कौन होता था, ही वॉज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी। तो उन्होंने ना, सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को बख्शी की पोजीशन पे से रिमूव करके मीर मदन को एस्टेब्लिश कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो जेलसी रहेगी। ठीक है, एंड सिराजुद्दौला ही थे जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी को फाइट किया। नाउ व्हाई दिस बैटल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, ही लॉस द बैटल ऑफ प्लासी बिकॉज ऑफ हिज कमांडर मीर जाफर। मीर जाफर ने क्या करा, मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स की साइड ली इस पर्टिकुलर बैटल के अंदर, बैटल ऑफ प्लासी। आई होप नाउ यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। एक बार इन पॉइंट्स को दोबारा देख लो, आई जस्ट क्लियर देम अप। हु वाज सिराजुद्दौला? फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज ही वाज द लास्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, अप्रैल 1756, अप्रैल 1756 कब तक रहे, व्हाट वाज द पर्टिकुलर थिंग, जून 1757। और कौन सी जून, इट वाज 23 जून। ठीक है, 23 जून तक वो रहे। मीर मदन को उन्होंने बख्शी डिक्लेयर कर दिया, एंड सिराजुद्दौला लॉस द बैटल ऑफ प्लासी बिकॉज ऑफ हिज कमांडर मीर जाफर। हो गया याद, सिराजुद्दौला इज डन। अब क्या होता है, नाउ व्हाई दिस बैटल ऑफ प्लासी, बिकॉज बिहाइंड एवरी बैटल देर आर सम काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म कॉजेज, शॉर्ट टर्म कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज एज वेल, कि व्हाई वॉज देयर दिस पर्टिकुलर बैटल। तो अब इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हेयर। वो क्या है, नाउ देर इज दिस नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, देर इज दिस नवाब ऑफ बंगाल, जस्ट इट विल टेक 1 minute टू लुक एट दिस स्टोरी। और दूसरी तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना, जो मुगल एम्परर होता है वहाँ से इनको एक ट्रेड परमिट मिलता है जिसको बोलते हैं दस्तक। तो दस्तक को हम क्या बोलेंगे, इट वॉज अ ट्रेड परमिट। ठीक है, तो इनको ट्रेड परमिट मिल गया मुगल एम्परर से। नाउ उन्होंने इस ट्रेड परमिट का, ट्रेड परमिट से क्या होता है कि आपको जो भी लोकल टैक्सेस वगैरह देने होते हैं ड्यूरिंग द ट्रेड एंड एवरीथिंग, आप वो पे नहीं करते हो, आपको उनसे फ्री मिल जाता है, फ्री ट्रेड परमिट होता है आपका। फाइन, तो उनको दस्तक मिल गया। नाउ दे स्टार्टेड मिस यूजिंग दैट दस्तक। ये ट्रेड परमिट दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो लोग थे, द पीपल हु वर देयर, तो व्हाट दे डिड वाज कि वो एक तरफ तो कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ट्रेड, ठीक है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर इन्वॉल्व इन प्राइवेट ट्रेड एज वेल यूजिंग द सेम दस्तक। वो अपने लिए भी ट्रेड करने लग रहे हैं एट अ इंडिविजुअल लेवल, नॉट एट द कंपनी लेवल। तो दे आर मिस यूजिंग द ट्रेड दस्तक। इससे क्या होगा, इससे नवाब के पास जो रेवेन्यू जाएगा ना, वो रेवेन्यू धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। द रेवेन्यू विल स्टार्ट टू डिक्रीज आफ्टर दे आर मिस यूजिंग द दस्तक। तो द होल पॉइंट ऑफ स्टोरी इज दैट EIC was doing something which could be seen as a kind of a corruption, misusing the facilities they were given, and this led to the Battle of Plassey. Now, when Sirajuddaulah started, moving towards Calcutta, by that time they had built the Fort William. Calcutta के अंदर ना उन्होंने, now do you remember when I told you कि in the starting they built unfortified settlements? Do you remember that point? Unfortified settlements. धीरे धीरे उन सेटलमेंट्स को फोर्टिफाइड कर लिया। फोर्टिफाइड करने का मतलब है उसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लगा लिए, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें बना ली, उसको मोर फोर्टिफाइड कर दिया। ठीक है, लाइक अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर। नाउ उन्होंने क्या करा कि कलकत्ता के अंदर एक फोर्ट बनाया विच वॉज नोन एज द फोर्ट विलियम। वो उन्होंने अपने किंग वगैरह के नाम पे रखा, विलियम थर्ड एंड दिस एंड दैट, नॉट इंपॉर्टेंट। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फोर्ट बनाया, उस फोर्ट का नाम क्या था, फोर्ट विलियम। उन्होंने मद्रास में भी एक फोर्ट बनाया था, उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट
सेंट जॉर्ज। ये फोर्ट कहां पर था? दिस फोर्ट वॉज इन मद्रास, राइट। तो फोर्ट विलियम है। अब सारी की सारी कंपनी की चीजें वहीं से उस एरिया से होने लग रही है। नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज, नाउ द नवाब, नवाब कौन है? हु इज द नवाब? हु इज द नवाब भाई? सिराजुद्दौला। नाउ ही स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द फोर्ट विलियम एंड ही कैप्चर्स सम पीपल। ठीक है, अब वहां पर कुछ लोग मिलते हैं, उनको कैप्चर कर लेता है। फोर्ट के अंदर देर वॉज अ स्मॉल रूम in the fort, and that too all Britishers. They were not habitual of this particular environment. They were not habitual of the all the temperature and everything, and they are stuffed over there for the complete night without water. They were there. So there were 146 people he captured, and from those 146 people, only 23 people survived the night. These were the survivors, and rest of the 123 people, they died in that small room on that night. This incident is known as the Black Hole Tragedy. So if you can remember this particular thing, ठीक है? So what are the points related with the black hole tragedy? जो भी स्टोरी बताइए, स्टोरी में से वो पर्टिकुलर पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करो। 1756 इंसिडेंट, सिराजुद्दौला कैप्चर्स फोर्ट विलियम in Calcutta. British prisoners are imprisoned in a small dungeon. Remember this particular image. It was overcrowding and lack of ventilation. Ventilation is when the air passes smoothly, and if the air was there were no windows and nothing. ठीक है, तो there was lack of ventilation. Only 23 people survived out of the 146 people. So please remember this particular all the details that I have given you till now. ठीक है, and this is related with the black hole tragedy. 1756, overcrowding and lack of ventilation. Only 23 people survived out of 146. Who is the tragedy किसके साथ related है? It is related with सिराजुद्दौला। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। नाउ देर इज अ फाइट विच इज गोइंग टू बी बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराज उद दौला। ठीक है, बैटल की डेट हमने पहले याद कर ली थी। व्हाट इज द डेट ऑफ द बैटल? व्हाट इज द डेट ऑफ द बैटल? इट इज 23rd June 1757. Please remember this particular date. This date laid the foundation of the British Empire in India. Right? So अब हम इस बैटल के बारे में देखेंगे. Now, why he did not win the battle? Sirajuddaulah was a good Nawab. He was doing great things. Number one, his commander of the army, Mir Jafar, was not with him. People from his court were also not with him. ठीक है, there were number of people, Omichan, other, there were a list of them who sided with the British. तो basically एक प्रकार से it was a एक प्रकार से धोखा था ये, that these people did with सिराजुद्दौला. तो हमको डेट याद है, ठीक है, हमको पता है किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी. तो बैटल ऑफ प्लासी वॉज 23rd June 1757. Robert Clive was the person who was fighting from the side of East India Company. You remember this person's name, Robert Clive. ठीक है, he is going to lay the foundation of British Empire in India. Robert Clive. मीर जाफर तो उनके साथ है ही है. ठीक है, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमी चंद. राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमी चंद. राइट, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमी चंद. मीर जाफर तो हैं. तो वी हैव JRJO. They are siding with Robert Clive. Now they defeated Sirajuddaulah, and Mir Jafar, who was the commander, he was made the next Nawab. So now you are going to think about all the Nawabs starting from Murshid Quli Khan. Murshid Quli Khan. Next, think about him. Sujauddin. Next is Sarfaraz Khan. Next, Alivardi Khan, Sirajuddaulah, and next who will come? He will be MJ or Mir Jafar. Now he is going to be the Nawab of Bengal. Fine. So Mir Jafar is made the Nawab of Bengal. They were given the zamindari of the 24 Parganas to the English. किस एरिया की जमींदारी मिली अंडर द बैटल ऑफ प्लासी टू द इंग्लिश?
the zamindari of the 24 parganas, that you can get the revenue from these particular areas. ये जो परगना का जो एरिया होता है उसके बारे में वी विल टॉक अबाउट अ लिटिल बिट, कि जैसे पूरा का पूरा जैसे प्रोविंस है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बंगाल को ये समझो कि इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स, एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन एज व्हाट? सरकार्स। These districts are known as sarkars. Now, these sarkars are divided into small sections. These small sections are known as parganas. ठीक है, वैसे तो आज तो ये वर्ड यूज में नहीं है, बट इफ यू सी दी मैप ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, आप वेस्ट बंगाल का जो पर्टिकुलर मैप अगर उसमें देखेंगे, देर इज अ एरिया 24 परगना, द नॉर्थ 24 परगना एंड द साउथ 24 परगना। ठीक है, दे आर काइंड ऑफ फंक्शनिंग एज अ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, सरकार डिस्ट्रिक्ट होती थी, 24 परगना उसके अंडर में आती थी। यू कैन से देवर द एरियाज ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट्स एंड दे कंटेन्ड नंबर ऑफ विलेजेस। ठीक है, दे कंटेन नंबर ऑफ विलेजेस। आफ्टर दिस इट वॉज मोजा। मोजा, it was the smallest revenue unit. Revenue unit, it was the smallest revenue unit. तो what we can say is कि पूरा का पूरा मुगल एम्पायर है, divided into number of provinces, and this, suppose this provinces is Bengal, ये बंगाल divided as सरकार्स के अंदर which are considered as districts. ठीक है, then it is divided into parganas which are number of villages, and फिर सबसे smallest unit which contains few villages, it is the मोजा। ठीक है, तो ये 24 परगना का एरिया हो गया। ठीक है, 24 परगना, ये एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा एक रीजन हो जाएगा। राइट, उस 24 परगनास की जो जमींदारी थी, दैट दे विल टेक केयर ऑफ द लैंड, दे विल गेट द रेवेन्यू फ्रॉम इट, वो किसको मिली? इंग्लिश को। अंडर विच बैटल? बैटल ऑफ प्लासी। लेटर एमजे रिजाइंड इन फेवर ऑफ एमके। हु इज दिस एमके नाउ? एमजे इज मीर जफर। एमजे इज मीर जफर। ठीक है, and MK, as we have talked about earlier as well, he is Mir Qasim. Okay, this was the Battle of Plassey. डेट याद रखनी है, किस किस के बीच में हुआ था। Who were the people who sided with the Britishers from the नवाब साइड? हमने इसको याद भी करा था, JRJO। ठीक है, जफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, एंड वी हैव ओमीचंद। ठीक है, अदर देन दैट 24 परगनास की जमींदारी याद रखना। एंड लेटर बाद में जाके ना मीर जफर को भी ये लगेगा कि यार ये इंग्लिश हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, दे आर डूइंग अनफेयर थिंग्स, एंड ही विल रिजाइन इन फेवर ऑफ मीर कासिम। तो हमारी जो ये वाली जो लाइन है, इसमें जो नेक्स्ट जो आएगा, ही विल बी मीर कासिम। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर मीर कासिम के बीच में एक ट्रीटी होती है। अब मीर कासिम आगे 1757 में बैटल हुआ, मीर जाफर बन गए। उसके बाद मीर जाफर रिजाइन कर देते हैं, ही रिजाइंस, राइट। एंड उसके बाद एमके। नाउ जब मीर कासिम आते हैं तो वो ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी करते हैं। व्हाट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर ट्रीटी? ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सबसे पहले तो ये ट्रीटी हुई थी 1760 में, तो 1757 का वॉर, 1760 में मीर कासिम की ट्रीटी। याद रखना, मीर कासिम की ट्रीटी हुई है। ठीक है, मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ एरियाज देंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स देंगे। व्हाट आर दीज डिस्ट्रिक्ट? द बॉम्बे म्यूनिसिपल काउंसिल, बीएमसी, और वी कैन से बुर्दवान, मिदनापुर, चिटगोंग, बीएमसी। बीएमसी के नाम से इसको याद रखो कि मीर कासिम ने जो ट्रीटी करी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसमें उन्होंने दे गेव देम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुर्दवान, मिदनापुर, चिटगोंग। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और क्या इस ट्रीटी के अंदर हुआ? उनके अंडर में, बंगाल के अंडर में एक एरिया आता था, इट वॉज द एरिया ऑफ सिलहट। ठीक है, इट वॉज द एरिया ऑफ सिलहट। नाउ सिलहट वॉज फेमस फॉर चूनम ट्रेड, जो लाइम होता है प्लास्टर में, ठीक है, चूना जो होता है उसका ट्रेड होता था। उस पूरे चूनम ट्रेड का हाफ शेयर किसने ले लिया? इट वॉज गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दे गोट 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, बुर्दवान, मिदनापुर एंड चिटगोंग। वेरी गुड।
दे गॉट द हाफ शेयर ऑफ द चूनम ट्रेड। जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे वो सब क्लियर करे गए कि भाई अब हमारा अकाउंट सेटल हो गया। दे वर इवन गिवन 5 लाख रुपीज फॉर देयर साउथ इंडिया कैंपेन। ब्रिटिशर्स सेड कि वी आर गोइंग टू साउथ इंडिया, वी आर गोइंग टू फाइट सम वॉर्स, गिव अस सम मनी। ठीक है, तो ही दे गॉट योर फ्रेंड विल बी माई फ्रेंड, योर एनिमी विल बी माई एनिमी, सो दीज आर द शॉर्टकट्स। भाई नहीं तो ऐसे स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटीज, ये सब पेजेस के पेजेस बन जाएंगे ना बहुत सारे। लास्ट मोमेंट पे उन पेजेस को याद करोगे? नो, यू हैव टू रिवाइज वेरी शॉर्ट शॉर्ट थिंग्स। याद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपका फ्रेंड मेरा फ्रेंड, आपका एनिमी मेरा एनिमी, ये इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया। आपकी टेरिटरी के लोग आपकी टेरिटरी में रहेंगे, मेरी टेरिटरी के लोग, जो कंपनी के लोग हैं, वो कंपनी कलकत्ता के एरिया वगैरह में रहेंगे जहां पर भी हमारी टेरिटरीज है। दिस इज वॉट वॉज डिसाइडेड। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। आई होप जितने भी अभी तक पॉइंटर्स हुए उनकी तुम्हें सब पॉइंट्स याद है, बिकॉज थोड़ी देर के बाद एक्टिव रिकॉल आने वाला है। ठीक है, मीर कासिम एंड बंगाल। देखो, मीर कासिम का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी हुई 1760 में, ये हमने देख ली। चूनम ट्रेड, द बीएमसी डिस्ट्रिक्ट्स, right? They were given 5 lakhs extra, friend friend, enemy enemy, and all these things were there. Now मीर कासिम ने बंगाल के लिए क्या करा? फर्स्ट थिंग वॉज कि मीर कासिम को ना एक चीज बिल्कुल श्योर थी कि ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू इंटरफेयर विद मी। ठीक है, जैसे उन्होंने मीर जफर के साथ करा था और उनको रिजाइन करना पड़ गया था। बट वट आई एम गोइंग टू डू, what I am going to do, first of all, he shifted his capital from मुर्शिदाबाद टू डैश। मुर्शिदाबाद से उन्होंने अपनी कैपिटल कहां पर शिफ्ट करी? नंबर वन थिंग, इट इज ऑल्सो फ्रॉम एम, विच इज मुंगेर, अगर अभी तक याद नहीं आया तो फर्स्ट थिंग दैट ही डिड विद मीर कासिम ने बंगाल के साथ पहली चीज क्या करी? मुर्शिदाबाद टू मुंगेर ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल। मुंगेर वॉज मोर स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मीर कासिम को लगा कि आई कैन कंट्रोल बंगाल बेटर फ्रॉम व्हेन आई एम इन मुंगेर। आई कैन ग्रो माई ट्रेड, आई कैन गेट मोर रेवेन्यू सिस्टमेटिकली, मैं एक आर्मी को रेज कर सकता हूं। तो ही इज डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से थोड़ा सा दूर जाए, वहां जाके आराम से अपनी आर्मी बंगाल को एस्टेब्लिश करे। तो ही वॉज बेसिकली ट्राइंग टू गेट बंगाल गोइंग, ज़्यादा से ज़्यादा वो डेवलप हो जाए, बेटर आर्मी आ जाए, बेटर रेवेन्यू क्रिएट हो जाए। सो दिस इज द मेन थिंग दैट मीर कासिम डिड विद बंगाल। ठीक है, तो वेन एवर आई एम गिविंग यू स्टिमुलस, हम रिकॉल एक्सरसाइजेज भी जब करेंगे इन फर्दर लेक्चर्स, तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। आज तो समझाने में आई थिंक आई हैव टेकन सो मच ऑफ योर टाइम। ठीक है, विल ट्राई टू रिड्यूस दिस डाउन टू 20-20 मिनट्स, ताकि हमारी रिवीजन जो है क्विक हो सके, सो दैट वी कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, जो हमारा मेन फोकस है। ये कहानियों से कुछ नहीं होगा, दैट यू वेरी वेल नो। एग्जाम विल आस्क स्टेटमेंट्स, इट विल आस्क अबाउट फैक्ट्स। लेट अस फोकस ऑन दोस। मीर कासिम और बंगाल जब भी दिमाग में आएगा, व्हाट आर यू गोइंग टू थिंक? मुर्शिदाबाद टू मुंगेर कैपिटल ट्रांसफर होती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर टू कम अप विद। He wanted a safe distance from the company. He reorganized the bureaucracy. He remodeling the army. तो बताया वो सारी चीजें जो वो कर रहा है, आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी को कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार ही ट्रांसफर्स हिज कैपिटल। नाउ नाउ कम्स द बैटल ऑफ बक्सर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, दे आर स्टिल नॉट गोइंग and do some type of corruption in the transit duties. What are these transit duties? आप ट्रेड करते हो, किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सामान लेकर जाते हो, यू आर गोइंग टू गिव सम ट्रांसपोर्ट टैक्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दीज आर नोन एज ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज। उन्होंने प्रॉब्लम करी दस्तक के मिसयूज को, वो रुक ही नहीं रहे थे। अपनी हरकतें तो, आदतें नहीं बदलेंगी। ठीक है, सो दे वर डूइंग दिस। And when the revenue was going down of Mir Qasim, he thought of what is happening? I have to fight these Britishers and get them out of from this particular place. And he starts the fight with Mir Qasim, starts the fight with East India Company. But at several places, be it Katwa, be it Murshidabad, be it Munger. कटवा, मुर्शिदाबाद, मुंगेर,
अलग अलग प्लेसेस पे मीर कासिम उसकी आर्मी हारना शुरू कर देती है। तो मीर कासिम क्या करेगा, आर्मी हारी है तो मैं क्या करूं, मुझे बेटर फोर्स की जरूरत है। ही रन्स अवे फ्रॉम देयर एंड ही क्रिएट्स अ कॉन्फेडरेसी। ही क्रिएट्स अ कॉन्फेडरेसी, बिल्कुल आम भाषा में ही क्रिएट्स अ ग्रुप। अब इस ग्रुप में कौन कौन है, वी आर टॉकिंग अबाउट बक्सर। बक्सर, ठीक है, बॉक्स, इस बॉक्स में कौन कौन है, मीर कासिम एक है, ही इज द नवाब ऑफ बंगाल। अब ये बंगाल का एरिया, जब हमने स्टार्टिंग में मैप डिस्कस करा था, हमने बोला था यहां पर असम है, यहां पर क्या है, यहां पर है अवध, और समटाइम्स इट इज रिटन एज लाइक दिस, अवध, ठीक है। वो अवध के नवाब के साथ, द नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्परर। हु इज द मुगल एम्परर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, शाह आलम सेकंड। गॉट इट। तो शाह आलम सेकंड, द नवाब ऑफ अवध, ठीक है। नाउ दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर ग्रुप, द नवाब ऑफ अवध, the Mughal emperor, and the Nawab of Bengal. These three people are going to form a particular confederacy. Now they are going to fight the East India Company. Starting Plassey के battle में, who was leading the army? He was Robert Clive who was leading, and this time it will be Major Hector Munro. He is going to lead the army. So you have to remember these two names, Robert Clive, Major Hector Munro. Battle of Plassey, Battle of बक्सर कब हुआ था? सबसे पहले तो प्लासी से एक डेट को कम करो। प्लासी की 23rd थी, अब हम बोलेंगे 22nd, ठीक है। जून में था, दिस वॉज इन अक्टूबर, एंड देर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 7 years. इट वॉज इन 1757, ये कब होगा, इट वॉज इन 1764। रिमेंबर दिस डेट। प्लासी से एक डेट को कम करो, जून का अक्टूबर करो, एंड यू गेट द 1764 आफ्टर एवरिंग 7 years. गॉट इट। सो दिस वॉज द डेट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। फोर्ट वॉर, ट्रांजिट ड्यूटीज पे नहीं हो रही हैं, दस्तक पे नहीं हो रही है, आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, नंबर ऑफ थिंग्स वर देयर। स्टार्टिंग में बहुत जगह लॉस होता है, ही फ्लड्स, क्रिएट्स अ कॉन्फेडरेसी। कौन कौन है इसमें, नवाब ऑफ अवध, द मुगल एम्परर, एंड द नवाब ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी इज अंडर मेजर हेक्टर मुनरो। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। तो नेक्स्ट टाइम अब जब तुम्हारे बैटल ऑफ बक्सर अगर कोई भी दिमाग में आएगा, बैटल ऑफ बक्सर, तो व्हाट वी आर गोइंग टू से, इट वॉज नवाब और कंपनी का कुछ टसल चल रहा था, देयर वाज फाइटिंग, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन द स्टोरीज। सुनने में अच्छी लगती है, पेपर में अच्छी नहीं लगती। नवाब एंड कंपनी का टसल चल रहा था ट्रांजिट ड्यूटीज पे और अब्यूज ऑफ दस्तक। ईस्ट इंडिया कंपनी कटवा, मुर्शिदाबाद, मुंगेर जैसी जगहों पे वो जीत जाते हैं। एक कॉन्फेडरेसी फॉर्म होती है, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। मिक्स नहीं करना है, मिक्स क्यों नहीं करना है, सबसे पहले था मुर्शिद कुली खान, उसके बाद था सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन पहले स्टार्टिंग में, और अब कौन है, सुजाउद्दौला। ये कौन है, दौला, नवाब ऑफ अवध। मुगल एम्परर एमी शाह आलम सेकंड। ऑब्जेक्टिव क्या था, वाई वी आर फॉर्मिंग दिस कॉन्फेडरेसी, why we are forming this confederacy, look at me, why we are forming this confederacy, to recover Bengal from the English. Who is fighting from the East India Company side is Major Hector Munro. When did this war occur, 22nd October 1764. जब इन कार्ड्स को ऐसे, these cards will be available to you, जब इन कार्ड्स को ऐसे ऐसे करके देखोगे ना, 5 minutes आई एम टेलिंग यू, जस्ट इन 5 minutes ना, दिस कंप्लीट टॉपिक विल बी रिवाइज्ड। और इस टॉपिक की वे बातें रिवाइज होंगी विच आर एग्जाम रेडी इंफॉर्मेशन, दीज आर एग्जाम रेडी इंफॉर्मेशन। And if you are here with me till this particular point of time, then you must subscribe, you must like this particular video, and let me know by these two gestures, by commenting on the video, that are you comfortable with these videos? Are you comfortable with this particular format? Are you comfortable with the flashcards?
Are you comfortable with the all the background information that I am giving you? You tell me that everything is good, and we are going to take up the prelims exam just like this. Okay, so let me know if you are here till now. Do that. आगे बढ़ते हैं. बैटल ऑफ बक्सर के बाद वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. व्हाट हैपेंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर? What happened after Battle of Buxar? When we were talking about कि मीर कासिम परेशान हो गए थे and he started to, there is more friction with the East India Company and he started to fight some wars कटवा में, मुंगेर, मुर्शिदाबाद, इन सब एरियाज में. तो उस टाइम पे ना ये वहाँ पर नहीं थे या वो नवाब से हट गए और ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम की जगह वापस से मीर जफर को लेकर आ जाती है. बट ही इज सो वीक बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही इवन डाइज आफ्टर दैट. ठीक है. व्हाट हैपेंस आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर? तो ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर हु इज द नवाब? अगेन ही इज मीर जफर. मीर कासिम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. फाइन. व्हाट हैपेंस इज the area. What happens after battle of Buxar? The areas of BMC to East India Company for the maintenance of army कौन कौन से थे? बुर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव. बुर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव जो पहले एरियाज थे वो कंपनी को प्रॉपरली ट्रांसफर किए गए जो उन्होंने प्रॉमिस करा था 1760 में. ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे आप बंगाल के अंदर. यू विल ट्रेड ड्यूटी फ्री इन बंगाल बट देयर विल बी 2% ड्यूटी ऑन सोल्ट. मीर जाफर डाइड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है. ही वॉज मेड द नवाब इन 1763 ओनली एंड आफ्टर मीर जाफर डाइड हु इज मेड द नवाब? नजीमुद्दौला. तो प्लीज हु वॉज द फर्स्ट वन? अब मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, अपने दिमाग में कंप्लीट कर लो नेम. दिस इज द फर्स्ट वन. दिस इज द दीन भाई साहब सुजाउद्दीन. नेक्स्ट चलो मैं नहीं बोलता, आई वोंट स्पीक. एस. Next is this. Next is this. Who betrays him? This person. He resigns in the favor of this. He starts fighting and again who is appointed? Who dies after some time? He dies and Nazimud-Dawla comes as the Nawab. Got the point? दिस इज क्यों याद करने को बोला? एक्सपैंड योर मेमोरी रिगार्डिंग दिस. इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन लर्न एनीथिंग. ठीक है. सो दिस इज हैपनिंग आफ्टर द पोस्ट बैटल ऑफ बक्सर. इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ you will take benefit out of what is going on. Now the battle of Buxar is over. मीर कासिम और उनकी जो पूरी की पूरी कॉन्फेडरेसी है, they have lost the battle and now there is going to be a treaty. ठीक है. एंड दिस इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद. नाउ रिमेंबर, अंडर दिस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ठीक है, विच वॉज इन 1765, द ईयर आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर तो अक्टूबर में था ना, तो ईयर चेंज होने में कितना ही टाइम लगेगा. और वैसे भी अक्टूबर तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया था बिकॉज द डेट वॉज 22 अक्टूबर. ठीक है. तो 1765 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद होती है और इस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के अंदर दो पार्ट्स हैं. ठीक है. तो जो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद है इसके अंदर दो पार्ट्स हैं. देखो मीर कासिम को तो कुछ मिलेगा नहीं. ठीक है. ही इज आउट ऑफ द पिक्चर बिकॉज ही वॉज द रियल कल्प्रिट एज पर द ईस्ट इंडिया कंपनी. द अदर टू पीपल दे विल हैव टू साइन अ ट्रीटी विद ईस्ट इंडिया कंपनी. मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, he has to sign one treaty. It comes under the Treaty of Allahabad. And second, Sujaud Dawla, he has to sign a particular treaty. And he was the Nawab of Awadh. Okay? And he is the Mughal emperor. ठीक है. So now what we are talking about, Treaty of Allahabad with the Nawab. नवाब के साथ क्या ट्रीटी हुई? And it has to be very simple treaty कि नवाब के साथ क्या हुई. सबसे पहले ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, इट इज इन अगस्त 1765. तो आप इसको याद रखेंगे. रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ अवध, मेजर हेक्टर मुनरो वॉज लीडिंग द फोर्सेज, हु वॉज लीडिंग द स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग. ठीक है. जो लीड कौन कर रहा था एज गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ अवध के बीच में होती है. नवाब सरेंडर्स टू मेन एरियाज. नंबर वन इज अलाहाबाद एंड सेकेंड वन इज कारा. तो नवाब ऑफ अवध की टेरिटरी से अलाहाबाद और कारा किसको मिल जाएंगे? शाह आलम सेकंड को. बाद में इनको बोला जाएगा आप यहीं रुकेंगे
हमारी प्रोटेक्शन में रुकेंगे ताकि आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फिर ना क्रिएट करो। तो नवाब ऑफ अवध से ये दो टेरिटरीज ली, इलाहाबाद और कारा की, एंड दे आर गिवन टू शाह आलम सेकेंड टू स्टे ओवर देयर अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, 50 lakhs इज गिवन एज वॉर इंडेमनिटी। आपने वॉर में जो हमारा खर्चा करवाया वो पैसा हमको वापस दो, गिव इट बैक। they are the winner of the war, they can force others to do that thing। ठीक है। अदर देन दैट, बलवंत सिंह, ही वॉज द जमींदार ऑफ बनारस, एंड दिस जमींदार ऑफ बनारस, ठीक है, ही इज गोइंग टू लेटर हेल्प द ब्रिटिशर्स एज वेल अगेंस्ट अवध। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इससे अच्छा मौका था ही नहीं बलवंत सिंह को अपनी साइड लाने का। ठीक है। सो देर इज सम टसल गोइंग ओवर इन बनारस, इन अवध। ठीक है, वो सब चल रहा है। एंड नाउ द ब्रिटिशर्स हैव गोट अ चांस टू बिफ्रेंड बलवंत सिंह मोर प्रॉपरली। ही इज द जमींदार ऑफ बनारस, और उसको जो उसका पूरा एस्टेट होता है ना, उसकी फुल पोजेशन दिलवा देते हैं नवाब ऑफ अवध से, कि आप बलवंत सिंह को उसका पूरा का पूरा एस्टेट वापस कीजिए। ठीक है, ताकि कल को जब नवाब ऑफ अवध के साथ फाइट होगी तो बलवंत सिंह भी विल बी विद अस। दिस इज द माइंड ऑफ ईआईसी विच वाज वर्किंग। पॉइंट्स क्या है, डेट क्या है नवाब के साथ, अगस्त 1765 जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की है। नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इलाहाबाद एंड कारा इज गिवन टू शाह आलम सेकेंड, वॉर इंडेमनिटी दी जाती है, बलवंत सिंह को उसका पूरा एस्टेट वापस किया जाता है। ठीक है। नाउ दिस ट्रीटी वाज बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब ऑफ अवध शुजाउद दौला। ठीक है। सो दे बेसिकली साइन दिस। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगी शाह आलम सेकंड के साथ, शाह आलम सेकंड के साथ एक ट्रीटी होगी। अगेन द ट्रीटी विल बी इन अगस्त 1765। एंड यहां पर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, कि नॉर्मल ट्रेडर्स से वो इंडिया में एक पोजीशन होल्डर बन जाते हैं। ऐसा क्या हुआ इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में? दे वर गिवन द दिवानी राइट्स, they were given the दीवानी राइट्स। व्हाट आर दीज दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स का, दीवानी जो वर्ड्स है, दीवानी राइट्स का मतलब है इट इज द राइट टू व्हाट, जिसको पता है, कलेक्ट टैक्सेस। भाई खुद सोचो ना, हु कलेक्ट्स टैक्सेस? द हाइएस्ट अथॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया कलेक्ट्स द टैक्सेस। नाउ दे आर गिवन द दीवानी राइट्स ओवर बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, मतलब जो कंप्लीट बंगाल है उसके दीवानी राइट्स किसको मिल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड। दे गॉट द राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस। जो लोग टैक्सेस दे नहीं रहे थे ना, उनको राइट टू कलेक्ट मिल गया। ये नवाब के पास थे राइट्स। एंड अब शाह आलम के साथ ट्रीटी साइन होने के बाद पूरे बंगाल के रीजन से टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा? इट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी। It was a gesture कि now we are the rulers. So basically they got converted from the traders to the rulers after the Battle of Buxar under the Treaty of Allahabad. I think you have got where I am putting the stress. Next, they got the Nizamat as well. Nizamat rights and duties. What are these Nizamat? Nizamat क्या है? कि आप डिफेंस, पुलिस एंड जस्टिस, इन सब चीजों को भी देखेंगे। डिफेंस, पुलिस एंड जस्टिस, दीज आर द ड्यूटीज ऑन द निजामत फंक्शंस। तो दे गॉट द निजामत फंक्शंस। दो चीजें हुई, दे गॉट द दीवानी राइट्स। नंबर 1, दे गॉट द राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस, वेरी गुड। सेकेंड, निजामत राइट्स, डिफेंस, पुलिस एंड जस्टिस। पूरा का पूरा ही तो कंट्रोल आ गया। बचा क्या है? व्हाट विल बी द नवाब ऑफ बंगाल डू? नजीमुद्दौला को बना दिया, बट वो करेगा क्या? सारे के सारे तो फंक्शंस आपने ले लिए हर प्रकार के। तो पहले इस ट्रीटी को खत्म करते हैं कि ये क्या कह रही है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ऑफ कोर्स इट वाज बिटवीन इट इन अगस्त 1765। सेकंड, रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम सेकंड। वहां पर रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला। Now Shah Alam II to reside at Allahabad under the company protection. Allahabad कैसे मिला? How did he get the Allahabad? नवाब से, under the treaty of Allahabad with the Nawab.
दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बदले में शाह आलम को 26 लाख की एनुअल पेमेंट जाएगी, बाद में इसको भी देना बंद कर देंगे। एंड 53 लैक्स जो शाह आलम है निजामत के फंक्शंस को पूरा करने के लिए, निजामत के फंक्शंस को पूरा करने के लिए दे आर गोइंग टू गेट 53 लैक्स फॉर द निजामत फंक्शन। और निजामत फंक्शन मैंने बता दिए, द डिफेंस, पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तीनों वर्ड्स को याद कर लो। कौन कौन से वर्ड्स अभी मैंने बोले? इट इज द डिफेंस, second one is the police, and third one is the administration of justice. These are the nizamat functions. अब देखो what is happening over in Bengal. एक तरफ there is the Nawab of Bengal, got it? Second, there is East India Company. East India Company got some rights, like they got the right of Diwani, the right to collect the taxes. Second thing, they got the Nizamat functions as well. What will be the Nawab of Bengal Najimuddaulah do? He will just maintain peace and order. अब इस काम को करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? पैसे की। वो किसके पास है? दैट इज विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो नाउ यू सी देर इज अ the whole Bengal is ruled by two. Number one, Nawab of Bengal. Number two, East India Company. So when we are talking about Diwani and Nizamat, East India Company Bengal को rule कर रही है. And when we are talking about normal peace and order, नवाब कौन है? He is the Nawab of Bengal, Najimuddaulah. ठीक है? तो this is the government of two. That's why it is known as the dual government. And this dual government was from 1765 to 1772. And in 1770, why this dual government can go for very long now? Why it is not going? Because you see, the Nawab will not able to function very well. East India Company is a profit motivated company, and they will only look at the profit and nothing else. So what happens with this कि जो पूरा का पूरा जो बंगाल का एरिया है, फेमाइंस, डिसीजेस, डिजास्टर्स, नंबर ऑफ थिंग्स, नो वन टू टेक केयर ऑफ। अगर नवाब चाहे भी तो टेक केयर नहीं कर सकता। इवन इफ ही वांट्स टू टेक केयर ऑफ बंगाल, ही कांट, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग द मनी, ही इज नॉट हैविंग द पुलिस एंड द अदर एसेसरीज एंड एवरीथिंग। स्टेट के फंक्शंस ही नहीं उसके पास। तो जो बंगाल की जो पोजीशन है ना, दैट स्टार्ट्स टू डिटोरिएट। ठीक है? एंड व्हेन the British Parliament or the Crown sees that कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी को तो भेजा तो था हमने ट्रेड करने के लिए, और उन्होंने बंगाल की ये पोजीशन कर दी है, हमारे पास कुछ पैसा आ नहीं रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। क्यों? वो सारा का सारा वो करप्शन में यूज करने लग रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वो खुद अपने आप को बेनिफिट कर रहे थे, क्राउन को भी कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है? सो what they do, they start to focus more on the East India Company. और जो क्राउन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, टू रेगुलेट देम properly so that they function properly, they passed the Regulating Act of 1773. And when Warren Hastings come to India, कौन? Warren Hastings come to India, Bengal specifically, he removes this particular dual government system. तो dual government को remove किसने करा? Warren Hastings ने। कब करा? 1772 में। You have to remember these 7 years, these 7 to 8 years were for the dual government system, and this is the structure of the dual government. Who removed it? Who removed it? It was this person. Got it? ठीक है। तो बंगाल ड्यूल गवर्नमेंट क्विकली 1765 to 1772, EIC एंड नवाब आर रूलिंग। EIC दीवानी निजामत फंक्शन उनको मिल गया डिफेंस, पुलिस एंड जस्टिस का। EIC गोट द राइट टू नॉमिनेट द डेप्यूटी सूबेदार एज वेल। जो निजामत के फंक्शंस को करेगा सूबेदार, ठीक है, डेप्यूटी सूबेदार, उसको नॉमिनेट करने की पावर भी EIC को मिल गई। नवाब क्या देखेगा? पीस एंड ऑर्डर। This dual government system is removed by Warren Hastings in 1772.
ये एक तरफ नवाब है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है. दिस इज द ड्यूल गवर्नमेंट विच इज गोइंग ऑन. I think you have got the basic points. And trust me, I promise on this particular fact, the videos are not going to be this long. Okay, I took my time to explain you to, to get this concept to you. Okay, so that is what I'm guilty of, and rest I think you have got everything. Now, East India Company got the Diwani functions. Now the point is, do they know how to do these particular things, how to interact with the people of India, and how to get all these things going? No, they don't have. So what they do, they appoint few people. So two deputy divans are appointed under the dual government by EIC. Who are these two people? ठीक है, you have to remember the names of them. ठीक है, मोहम्मद रजा खान. ठीक है, मोहम्मद रजा खान. MRF के टायर्स होते हैं ना, यहाँ पर MRK है. ठीक है, ही इज द डेप्यूटी दीवान फॉर बंगाल एरिया. जो बंगाल का जो मेजर एरिया होगा, उस एरिया के मोहम्मद रजा खान. ठीक है, राजा सीतप रॉय इज मेजरली फॉर द बिहार एरिया. उड़ीसा वगैरह सब इन दोनों में इंक्लूड हो जाएगा. राजा सीतप रॉय इज फॉर बिहार, RSR. ठीक है, ही इज फॉर बिहार. एंड MRK is for Bengal. Mohammad Raza Khan, Raja Sitab Roy. ठीक है, and this Mohammad Raza Khan is also made the deputy Subedar, because if you remember, they got the power to nominate the deputy Subedar. ठीक है, so they did. और इन दोनों को वैसे दीवान तो अपॉइंट कर ही दिया था, डेप्यूटी दीवान. दीवानी किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास है. ये डेप्यूटी दीवान है जो एक्चुअली में बेसिकली सारा का सारा काम करेंगे. This we have discussed the period from 1700, and we discussed some of the basics when the East India Company was formed in on which date? Which date? 31st December 1600. Queen Elizabeth I, Royal Charter. ठीक है, 1700 से when the Nawab of Bengal was Murshid Quli Khan, starting from there, and we have discussed a system up to 1772. And this is how the Britishers, ladies and gentlemen, got the Bengal from India. This is how they annexed it, they consolidated it. Okay, this is the complete topic. I hope you remember everything. अब वो everything तुम्हें याद है या नहीं है, उसके लिए एक हमारे पास सिस्टम है. And this system is very clean that you can see over here. Now this is the active recall time. Get ready. Get ready. This is the active recall time. And this is where we are going to see कि कितना याद है. ठीक है, अब देखो, तुम जितने ट्रूथफुल रहोगे ना इस सिस्टम में, उतना ज़्यादा बेटर है. अब I'll just point it out to you. How? देखो, causes of British success in India. Think about it. Start thinking. मैं कम बोलता हूँ, आप ज़्यादा सोचो. Causes of British success. Very good. Military discipline. Good. Financials. Keep thinking. नेशन से कुछ रिलेटेड था, नेशनलिस्टिक प्राइड. लीडर से कुछ रिलेटेड, लीडरशिप, डिसिप्लिन, एवरीथिंग. दीज ऑल थिंग्स वर देयर. फाइनेंशियल बैकअप था, यस, सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन, डेट मार्केट का यूज किया गया. ओके, यू रिमेंबर इट. व्हाट वर दी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बंगाल टू यूरोप? गन पाउडर में क्या यूज होता है? सॉल्ट पेटर. ठीक है, सिल्क, कॉटन, sugar, rice, indigo, right? So these were the major exports which were going on. कितना परसेंट? एशिया का कितना परसेंट? 60. ब्रिटिश फैक्ट्रीज इन बंगाल अराउंड 1630. व्हाट वर द ब्रिटिश फैक्ट्रीज? कौन कौन सी थी ब्रिटिश फैक्ट्रीज? कुछ याद आया? बालासोर, हुगली, कासिम बाजार. कुछ याद आया? पटना, डेक्का. वेरी गुड. नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कैलकाटा किसका जॉब था? कैलकाटा को एस्टेब्लिश कर. जॉब किसका था? जॉब चारनोक का था. कब? व्हेन? 1630. वेरी गुड. 1630 में विच वर द 3 विलेजेस? सुल्तानुती, कैलिकट, गोविंदपुर. मुझसे पहले बोलना होगा इस चीज को.
ठीक है, दिस वॉज बीइंग डन. विच वॉज द रिवर ऑन विच ऑल दी सेटलमेंट्स आर देयर? हुगली रिवर. ओके, ये चार कर लिए. Congratulations, you have done some part of it which is visible over here. You have actively recalled 25%. ये हमारे चार तो टॉपिक्स हो गए. नेक्स्ट को देख सकते हो, नवाब्स ऑफ बंगाल. फोर नवाब्स ऑफ बंगाल. नंबर वन, 1700 to 1727. Who was there? Murshid Quli Khan. 27 to 39, Sujauddin. 39 to 40, just for 1 year, SK Sarfaraz Khan. And 40 onwards to 56, who was there? Alivardi Khan. Sirajuddaulah. One thing about Sirajuddaulah that you remember, something about independence. He was the last independent Nawab of Bengal. Very good. April 1756 to कब तक? Battle की date, Battle of Plassey. What was the date? 23rd June 1757. He is related with which tragedy? Black hole tragedy. How many people survived? 23 out of 146. कहाँ रखा था उनको? फोर्ट विलियम में. व्हाट इज द नेम? एक्स्ट्रा पॉइंट्स. व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट इन मद्रास? फोर्ट सेंट जॉर्ज. वेरी नाइस. ठीक है, दिस वॉज सिराजुद्दौला. ही फॉट द बैटल ऑफ प्लासी. ही लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ मीर जाफर. ही अपॉइंटेड हु एज द बख्शी? मीर मदन. व्हाट इज अ बख्शी? हु इज अ बख्शी? पे मास्टर ऑफ द आर्मी. वेरी गुड. ब्लैक होल ट्रेजेडी, बातों में इसको पूरे को डिस्कस कर ही लिया. बैटल ऑफ प्लासी, डेट 23rd June 1757. वेरी गुड. फोर्ट विद कौन कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड, ब्रिटिश की साइड से रॉबर्ट क्लाइव. देन कमांडर ऑफ द बंगाल आर्मी, ही वॉज मीर जाफर. हु वर द अदर पीपल? वी रिमेंबर्ड इट बाय दिस JRJO. Jafar, Rai Durlab, Jagat Seth, and who is this? Omi? Omi what? Omi Chand. Very good. So these people sided with the British. Sirajuddaulah, of course, he lost the battle. ठीक है. नेक्स्ट, उसके बाद मीर जाफर आ जाते हैं. मीर जाफर रिजाइन कर देते हैं. मीर कासिम आ जाते हैं. मीर कासिम साइंस अ ट्रीटी इन विच ईयर? 1760. कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट्स देनी है? BMC. कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट देनी है? BMC. बुर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव. वेरी गुड. और क्या क्या देना है? किसी चीज़ का ट्रेड देना है. हाँ, किस चीज़ का? चूनम ट्रेड. कौन से एरिया का? सिलहट का. ठीक है, ऑफ कोर्स यू आर रिमेंबरिंग दीज थिंग्स. एक एक्स्ट्रा कर दिया वैसे इस वाली चीज़ के लिए. ठीक है, नेक्स्ट, मीर कासिम. बंगाल में उन्हें, मीर कासिम ने बंगाल में क्या चेंजेस करे? कैन यू रिमेंबर दैट इमेज वेर ही वॉज होल्डिंग द मैप? दैट मीर कासिम वॉज होल्डिंग अ मैप. Murshidabad to Munger. Why is doing that? To distance him from the company so that they can rebuild, reorganize the army. What else? Bureaucracy. Very good. Then comes the Battle of Buxar. Why it is fought? What are the issues? What is the tussle between Mir Qasim and the East India Company now? Okay, transit duty, number one. What was being abused? The dastaks were being abused. मीर कासिम शुरुआत में कुछ जगहों पर हार जाते हैं. कौन कौन सी? कटवा. वेरी गुड. KMM. मुर्शिदाबाद, मुंगेर. नाइसली डन. I don't know whether you are doing it or not, but I'm hoping that you remember it. ठीक है, हो गया. What happened? बैटल ऑफ बक्सर की डेट तुम्हें याद है? पहले एक डेट को कम करो प्लासी से. 22 अक्टूबर 1764. What happened after बैटल ऑफ बक्सर? एक तो नजीमुद्दौला को बना दिया गया था क्योंकि मीर जफर की तो डेथ हो गई थी. ठीक है, तो वो सब चीजें चल रही थी. देयर वॉज अ ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद विद नवाब. सबसे पहले कब हुई थी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद? अगस्त 1765. Very good. Next, what happened after that? What happened after that? Treaty of Allahabad with Nawab is to give some war indemnity as well. Allahabad और कारा का रीजन देना. बनारस जमींदार, do you remember Balwant Singh? Okay, he is getting his estate back. Treaty of Allahabad with Shah Alam II. He is going to live in Allahabad, stay in Allahabad under company's protection. Diwani rights, Nizamat rights. These were the two major things that they got.
बंगाल के अंदर ड्यूल गवर्नमेंट आते हैं. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस ड्यूल गवर्नमेंट? 1765 after the Treaty of Allahabad till 1772. Who finishes up the dual government system? WH वॉरेन हेस्टिंग्स. उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है 1773 टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द क्राउन. ठीक है, दिस इज द ड्यूल गवर्नमेंट. हु इज हैंडलिंग द पीस एंड ऑर्डर? नवाब ऑफ बंगाल. हु इज हैंडलिंग द डिफेंस पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस? ईस्ट इंडिया कंपनी. The Nizamat functions. They got some money as well, 53 lakhs somewhere. Who were the two deputy divans the company appointed for the Diwani of Bengal? बंगाल के लिए कौन अपॉइंट हुआ? MRK, मोहम्मद रजा खान. वेरी गुड. हु इज फॉर बिहार? RSR, राजा सीतब रॉय. MRK कुछ और भी बना था, डेप्यूटी सूबेदार. Yes, he was the deputy subedar. And congratulations, you have successfully actively recalled the complete topic. Though we took our time, I agree with that, but we did it in everything that we could to get this thing going. We are going to do it with every other topic. सभी टॉपिक्स को इतने ही एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट के साथ हमें फिनिश अप करना है, सो दैट हम अपनी पूरी की पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अब वो चाहे एनसीईआरटी से हो, ओल्ड एनसीईआरटी से हो, चाहे न्यू एनसीईआरटी से हो, चाहे हमको उसके लिए स्पेक्ट्रम करनी हो, चाहे वी हैव टू डू द बिपिन चंद्रा बुक, डजेंट मैटर. वी आर गोइंग टू कवर एवरी सोर्स and we are going to do with these videos. So your task is to do these topics again and again by watching them again and again, and you will remember. But from the next time, today you have learnt about this, but from the next time you have to be actively involved so that you can answer all these points. And if you can answer, so then this video deserves a like, which I have already asked from you as a gesture from your side. So this was me, Ajay from Yuktira IAS, and I'll see you in the next lecture. Hope you liked it.